Good morning, children. In the previous video, you have seen how the alcohols can be prepared from haloalkane and from alkene. Now, from alkene, we can get the alcohols by hydration of alkene in presence of sulfuric acid. And you have seen the reaction that alcohol is formed according to Markovnikov rule. Now we will take the mechanism of this reaction. Its mechanism is important in CBSE exam. 2 marks question is asked to write the mechanism of catalytic hydration of alkene or write the mechanism of hydration of alkene to form alcohol. So the hydration of alkene takes place in 3 steps. First step is the attack of H plus on alkene to form carbocation. So now see this step. H2SO4 in water dissociates to give H plus. In aqueous solution, H plus exists as hydronium ion. Then this H plus attack on the alkene, or this pi bond is given to H plus, and then this pair revert with the oxygen and forms this carbocation, and water is again produced here. Now in the second step, nucleophilic attack by water molecule takes place. This carbocation is formed in first step by the attack of proton or hydronium ion on the alkene. Then water molecule act as nucleophile. As we know, the nucleophile attacks at electron deficient center. So in carbocation, here carbon is bearing positive charge. This pair is given to this C. So oxygen get attached to this C through this pair and bears positive charge on oxygen. So only one pair is left here. Now this is protonated alcohol. Once the positive charge is developed on oxygen, it pulls this shared pair towards itself, and or this pair towards itself in order to satisfy the deficiency of electron around the oxygen. So since carbon is more electronegative than hydrogen, so it pulls the shared pair from the hydrogen like this, and this is the third step, deprotonation, that is the loss of proton. So this oxygen having positive charge, it pulls the shared pair between OH towards itself. So H is released as H plus in the medium, which combined with water to form hydronium ion again, and we get alcohol. So note that the mechanism of hydration of alkene, it involves 3 steps. First step is formation of carbocation by the attack of proton on alkene. Here this attack, since it forms the carbocation, so attacks takes place in such a manner so that if there are chances for formation of different carbocation, as the pi electron may be polarized to this side or to this side in presence of this polar reagent, so more stable carbocation will be formed here and Markovnikov rule will be followed. So first step is formation of carbocation. Second step is nucleophilic attack by water molecule to form protonated alcohol, and third step is loss of proton, that is deprotonation to form alcohol. ये इम्पोर्टेंट होगा बच्चों 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में. नाउ ये आपको रिएक्शन दिया गया है, इसको पूरा करना है. तो हम ये देख रहे हैं कि अब हमारा जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है. तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जब हाइड्रेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो एक्चुअली होता ही है कि H2SO4 पहले इस पर अटैक करेगा एल्कीन पर. तो H2SO4 में हम जानते हैं H प्लस होता है और HSO4 माइनस होगा. ओके, अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो पाई बांड का, चूँकि ये पोलर रिएजेंट है, तो पाई बांड का कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा आइदर टू दिस डायरेक्शन और टू दिस डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन का ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फेवरेबल होगा, जिसके वजह से जो कार्बोकेटायन बने वो मोर स्टेबल हों.
तो चूंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है तो अटैक किसका होगा, H प्लस का होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो जैसे ही H प्लस का अटैक होगा तो वहाँ होगा जहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस डायरेक्शन में दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसके चांसेस इस डायरेक्शन में होंगे, गिवन डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसा करने पर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा। अगर आप इसको देखें तो अब आप ऐसा लिख सकते हैं CH3 और CH और यहाँ पर क्या लिखेंगे CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये कार्बोकेटायन बन गया। इसके बाद वही है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। लेकिन जब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं तो यहाँ पर SO3H ये वही है, HSO4 माइनस, ये अटैक करेगा। और इसके बाद ये होता है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ये एज ए इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट एज ए इंटरमीडिएट। अब इसके बाद फिर वही करना है, वाटर के साथ इसको हीट करना है या बॉईल करना है। तो यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा CH3 CHOH और यहाँ CH3 और H2SO4 जो कैटालिटिक रोल में है यहाँ पर वापस रीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से जब कोई भी एल्कीन का हाइड्रेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, जैसे यहाँ आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा और H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल विल बी फॉलोड हियर। अब ये आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि इसको आप पूरा करें। देखिए यहाँ पर जो एल्कीन दिया गया है ये भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पर ये पोलर रिएजेंट है, ये कैटलिस्ट है। अब पोलर रिएजेंट में क्या है, H प्लस और OH माइनस है, तो हम ये जानते हैं कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का किसी पोलर रिएजेंट से रिएक्शन होता है तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो पोलर रिएजेंट है, जो एडेंडम है, उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में है, ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। तो अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो H माइनस वो कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन H प्लस जो है वो इस पर जाएगा, और जो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कम था, हाइड्रोजन हाई नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, और फिर ये ऐसे होगा, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और वहाँ पर जाएगा H, और अब ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, यहाँ CH2 है और ये CH3 है। जैसा हम जानते हैं टर्मिनल पर CH3 होता है। एक दूसरा मेथड है एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट and question asked from this topic, what is hydroboration oxidation reaction. So in hydroboration oxidation reaction, alkene is treated with diborane, then we get trialkyl borane as an intermediate, then that trialkyl borane is subjected to oxidation by hydrogen peroxide in alkaline medium to form alcohol. Here in this case net product is addition of water to alkene to form alcohol, but here the product is formed against Markovnikov rule. तो ये आप ध्यान में देंगे कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी अल्कोहल देगा जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में था, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा। तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, प्रोपीन डाइबोरेन से ट्रीटमेंट हुआ, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम, तो हमें प्रोपाइल अल्कोहल मिल गया, प्रोडक्ट इज फॉर्म अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल। इसके स्टेप्स क्या है कि डाइबोरेन जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर चूंकि डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है,
एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। ये जो डाइबोरेन है ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा। ये वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसका अटैक इस तरह से होगा कि हमें ट्राई एल्किल बोरेन मिल जाएगा। ये 3 मोल्स लेंगे और यहाँ पर हमारा BH3 होगा 2 मोल्स, तो हमारा ये बन जाएगा ट्राई एल्किल बोरेन। ये इंटरमीडिएट बनेगा। फिर ये ट्राई एल्किल बोरेन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर ये 3 मोल्स आपका प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो H2O2 में अगर आप देखें तो HOOH होता है, तो 3OH इससे अटैच हुआ और 3OH B से भी अटैच होगा, तो साथ में BOH होल थ्राइस आर्थोबोरिक एसिड भी बनता है। तो ध्यान रहे, एल्कीन डाइबोरेन के साथ रिएक्शन ट्राई एल्किल बोरेन, और फिर ट्राई एल्किल बोरेन का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अल्कोहल, और यहाँ जो अल्कोहल बनेगा अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल, ये आपको याद रखना है। सो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, 2 मार्क्स क्वेश्चन। मैकेनिज्म ये आता ही आता है, या तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कोर्स में भी लिखा हुआ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म, और दूसरे हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन, ये शॉर्ट नोट या रिएक्शन नेम रिएक्शन के नाम पर भी हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन ऐसा होता है, पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसके 2 मेथड होंगे। पहला होगा डायरेक्ट रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स द अल्कोहल। तो रिडक्शन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल पैलेडियम यूज कर सकते हैं, या केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट जो कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करते हैं कि ये हमारा एल्डिहाइड है, तो अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड ले लें तो जो हमारा ये C डबल बॉन्ड होगा ये ओपन होगा रिएक्शन कंडीशन में इस तरह से, और C से एक H अटैच है, तो जब ये बॉन्ड ओपन होगा तो ये बन जाएगा। अब हमें हाइड्रोजन ऐड करना है क्योंकि रिडक्शन होना है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन O से अटैच कर दीजिए क्योंकि ये बाईवैलेंट होता है और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो जो एल्डिहाइड है वो हमें कौन सा अल्कोहल देंगे, प्राइमरी अल्कोहल देंगे एज ए प्रोडक्ट। नाउ अगर हम कीटोन ले लें तो यहाँ पर उसी तरह से आपको प्रोडक्ट लिखना है कि इस तरह से लिखेंगे, और जो CO बॉन्ड है उसको ओपन कर देंगे बच्चों इस तरह से। तो अब क्या हुआ कि एक वैलेंसी यहाँ क्रिएट हुई, एक वैलेंसी यहाँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स अल्कोहल, all the aldehyde give primary alcohol and ketones give secondary alcohol as a product। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेक्स्ट एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाने का, लेकिन असेंडिंग इन सीरीज करना हो, अगर कार्बन एटम बनाना हो तो इस मेथड का यूज करते हैं। रिएक्शन ये है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट। ये जैसा हम जानते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट में R और Mg बॉन्ड क्या होता है, हाईली पोलर होता है, और जो ग्रिग्नार रिएजेंट है इट इज सोर्स ऑफ कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन क्या एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें C डबल बॉन्ड होता है। ये दोनों वैलेंसीज फ्री है, दोनों पर हाइड्रोजन होगा, या एक R एक H होगा या दोनों R होगा। ये डेल पॉजिटिव है डेल नेगेटिव। तो ये जो कार्बेनाइन है, तो जब ये यहाँ से टूटता है तो R ग्रुप, चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो Mg+ वाला O पर आ जाएगा। तो अब क्या बन गया, C और R किससे जुड़ गया, इस C से, क्योंकि इस पर नेगेटिव था, पॉजिटिव वाले से जुड़ गया, और O पर माइनस था उससे क्या जुड़ गया, Mgx। ये एक इंटरमीडिएट बन जाता है। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो अगर हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर H+OH-, तो ये पोलर पार्ट है, इसी पार्ट पर फर्क पड़ेगा हाइड्रोलिसिस पर, क्योंकि ये पोलर पार्ट है। तो O- से क्या जुड़ेगा, H+ जुड़ जाएगा, और जो OH- है वो Mg+ से जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया।
अब हम इस रिएक्शन को देखेंगे कि हम एल्डिहाइड को बदलते जाएंगे। अगर हम इस कार्बोनिल कंपाउंड को अलग अलग ले लें तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम सबसे पहले सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो है फॉर्मल्डिहाइड है, तो अगर हम HCHO, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है, तो RMgX होगा। तो जैसा आपने देखा कि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो ये R कहाँ जाएगा, C पर जाएगा। तो जो यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा क्या बन जाएगा, देखिए H और ये C, इस पर R आ गया और H है और O ऐसे फ्री हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, O पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जो MgX है वो O पर चला जाएगा, OMgX। इसी तरह का एक इंटरमीडिएट बन गया। फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो हम जानते हैं कि इसी पार्ट पर फर्क पड़ेगा, ये पोलर पार्ट है, तो क्या बन जाएगा HCHROH। चूँकि H प्लस इस पर गया वाटर का, तो OH माइनस इस पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया OH Mg और X। तो इसका मतलब हमें कौन सा अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो ये H की जगह R आ जाएगा, R वेरिएबल होगा, ये H तो रहेगा क्योंकि CHO रहना ही रहना है। फिर RMgX आएगा, फिर ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है, फिर R माइनस है, तो बच्चों R को कहाँ ले जाओगे, C प्लस पर, तो ठीक है ले जाइए। R यहाँ C है, यहाँ H है, तो इस पर एक R और ले जाइए, और O पर माइनस है तो क्या जुड़ेगा, MgX यहाँ आ जाएगा। फिर इसके हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो फिर वही पोलर पार्ट पर फर्क पड़ेगा, ये पोलर पार्ट है, तो R हो गया CH, यहाँ पर R, और जो O है वो OH हो जाएगा, और साथ में वही OH MgX बन जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल दिया, ये R2CHOH है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया हमारा। और अगर हम कीटोन लेंगे उसी तरह से रिएक्शन लिखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है, तो R कहाँ जाएगा, इस पर आएगा, तो यहाँ पर R C R R 3 R हो गया, O पर MgX जुड़ गया, O माइनस Mg प्लस है, हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बन जाएगा, ये R 3 R हो गया, तो टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, और साथ में OH MgX एज ए प्रोडक्ट टर्शियरी अल्कोहल। तो ध्यान रहे ये मेथड बड़ा ही अच्छा मेथड है, इससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल तीनों बना सकते हैं। और असेंडिंग इन सीरीज अगर कहीं प्रोडक्ट में कार्बोनेटम बढ़ाना हो, कम से कम एक कार्बोनेटम, तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने के दो मेथड हुए, एक डायरेक्ट रिडक्शन कर दीजिए, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी। दूसरा, ग्रिग्ना रिएजेंट को ऐड करिए, इंटरमीडिएट बनेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस एसिडिक कराइए, फिर आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के रिडक्शन से भी अल्कोहल हमें मिल जाता है। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो रिडक्शन होगा वो कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, या डाइबोरेन हो सकता है, तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम ईस्टर लेंगे तो इस पार्ट से हमारा एक अल्कोहल बन जाएगा, एक अल्कोहल इस पार्ट से बन जाएगा। LAH ये शॉर्ट फॉर्म है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पर ये अल्कोहल इस तरफ से बन गया और ROH इस पार्ट से बन गया। तो अल्कोहल में अगर हम ईस्टर लेंगे तो रिडक्शन से दो अल्कोहल बन जाएगा। फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मेथड है इसमें कि अगर हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हो, इसका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होता है। नाइट्रस एसिड हाईली अनस्टेबल होगा, इसको बनाने के लिए NaNO2 और HCl के रिएक्शन से 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रिएक्शन कराई जाएगी। यहाँ होनो हम नाइट्रस एसिड को होनो के फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रहे, होनो HONO नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को क्या लिखेंगे, होनो। तो होनो को आप ऐसे अरेंज कर दीजिए। तो अब देखिए प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, इतना पार्ट ले लीजिएगा अल्कोहल में, ये पार्ट नाइट्रोजन गैस बना के इवॉल्व हो जाएगी, ये वाटर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल्किल डाइजोनियम साल्ट बनता है और फिर वो एल्किल डाइजोनियम साल्ट फाइनली वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लें कि अल्कोहल के शुरू के मेंबर्स जो होते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, अल्कोहलिक ऑर्डर होता है, हायर मेंबर्स जो होते हैं कलरलेस वैक्सी सॉलिड होते हैं और उसमें स्मेल भी कम होती है।
मेथनॉल पॉइजनस होता है, इसका इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, बट इथाइल अल्कोहल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन एंड बिवरेजेस एंड आल्सो इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि सॉल्बिलिटी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एल्कोहल्स सॉल्बिलिटी, एल्कोहल्स आर सॉल्बल इन ऑल प्रोपोर्शंस इन वाटर, और इसकी सॉल्बिलिटी का जो रीजन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एल्कोहल मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, so this is due to this intermolecular hydrogen bonding. जो अल्कोहल है इट इज सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शंस इन वाटर। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी, चूँकि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक दिस वन। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ध्यान रहे कि अगर मास सेम है तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हेलोएल्केन से ज़्यादा होगा और हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाती है। अगर हम आइसोमर्स की बात करेंगे, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। थैंक यू, और इसको पढ़ें आप, जो मैकेनिज्म है उसको ज़रूर आप रिवाइज करें, एंड इफ़ यू लाइक दिस देन शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।